میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ سب جو ہے 10 محرم الحرام میں جہاں جہاں پر گلیوں میں پنجے بٹھاتے ہیں، اس میں میری اور آپ کی شرکت ہی نہیں بلکہ جتنے مسلمان ہیں ان سب کی شرکت کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ بدعت والا کام ہے۔ ہم 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھ کر یہ پنجے نکالتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک واقعہ بتاتا چلوں، وقت کا تقاضا ہے، میں جتنا جلد ہو سکے اپنے واقعے کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ایکم محرم الحرام گزری ہے، ابھی 4 دن پہلے ایک محرم الحرام کی تاریخ گزری ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کریں گے پتہ چلتا ہے ایک محرم الحرام کو ایک ایسے صحابی کی شہادت ہوئی ہے، ایک ایسے صحابی رسول کا انتقال ہوا ہے جن کا نامی اسم گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ بولو بھائی، کیا نام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول گزرے۔ ایک محرم الحرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے عمر، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے گھر والے روتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، شادی شدہ ہے، بیوی بچے روئیں گے۔ اے عمر، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس کے خاندان والے روئیں گے۔ اے عمر، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب روئیں گے۔ اے عمر، اگر کسی کا انتقال ہو جائے محلے کے لوگ جمع ہو کر دھاڑے مار کر روئیں گے۔ اے عمر، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اگر وہ بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو کوئی کیوں نہ ہو، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، جب لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہوا ہے، لوگ اس کے انتقال پر روتے ہیں۔ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، اس بات کو ضرور سن لیجئے گا، اے عمر، اس بات کو سن لے، اگر تیرا انتقال ہو جائے گا تو پورا اسلام روئے گا۔ حضرت عمر سے کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اے عمر، کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ روئیں گے، کسی کا انتقال ہوتا ہے رشتہ دار روئیں گے، کسی کا انتقال ہو جائے بیوی بچے روئیں گے۔ اے عمر، اگر تیرا انتقال ہو جائے پورا اسلام روئے گا۔ عمر، اگر تیرا انتقال ہو جائے آسمان کے پورے فرشتے روئیں گے۔ اے عمر، اگر تیرا انتقال ہو جائے مدینے کے اندر حدود حرم میں جتنے یتیم بچے ہیں، حضرات علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے 80,000 سے زائد یتیم بچے اے عمر تیرے انتقال پر دھڑے مار کر روئیں گے۔ اے عمر، اگر تیرا انتقال ہو جائے مدینے کے ہزاروں کی تعداد میں بیوہ عورتیں روئیں گی۔ اے عمر، اگر تیرا انتقال ہو جائے جانور بھی روئیں گے۔ عمر، تیرا انتقال ہو جائے پورا اسلام روئے گا۔ بزرگان محترم، یہ ایک محرم الحرام کو اتنے بڑے صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال شہادت ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے لیے منحوس والا دن نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے ماتم والا دن نہیں تھا؟ تم 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر ماتم بناتے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صرف محرم الحرام کے مہینے ہی میں حضرات صحابہ کرام کو شہادت ملی ہے؟ کیا رمضان میں شہادت نہیں ہوئی؟ کیا شوال کے مہینے میں شہادت نہیں ہوئی؟ کیا ذی قعدہ کے مہینے میں شہادت نہیں ہوئی؟ سال کے 12 مہینے میں بھی ہم شہید ہوئے ہیں۔ تم کون سے صحابہ کے نام پر ماتم مناؤ گے؟ بتاؤ مسلمانوں۔ اس لیے بزرگان محترم اور آگے بڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عمر، اگر تیرا انتقال ہو جائے یہ آسمان بھی روئے گا۔ آسمان تو آسمان میں رہنے والے فرشتے روئیں گے، مدینہ منورہ میں یتیم بچے روئیں گے، بیوہ عورتیں روئے گی۔ بزرگان محترم، ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ آگے واقعہ بڑا لمبا ہے، 2 باتیں بتا دیتا ہوں چونکہ روزے کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ آگے بڑھ کر واقعے کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسی ہوئی؟ مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لولو فیروزہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرچم مارا۔
जैसे ही परचम लगना था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने से खून निकलने लगा। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। आगे बढ़े, आगे बढ़कर नमाज को मुकम्मल किया। नमाज को मुकम्मल करने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शहादत एक मुहर्रमुल हराम को हुई है, मेरे भाइयों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर घर लेकर गए। घर लेकर जाने के बाद एक टिपाई पर आराम करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुलाया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हुए हैं। लोगों ने कहा कि जल्दी से जाओ, डॉक्टर को बुला कर लाओ। क्या कहा? जल्दी से जाओ, डॉक्टर को बुला कर लाओ, तबीब को बुला कर लाओ, हकीम को बुला कर लाओ। इसलिए कि इतना ज़ोर से अबू लुलू फ़ैरोज़ा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को परचम मारा था कि जिसके ज़रिए से खून के फव्वारे निकलने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ये जुमले को सुना कि डॉक्टर को बुला लाओ, हकीम को बुला लाओ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमला कहा, मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ कि इस जुमले के अंदर एक जुमा मुझे अर्ज करना पड़ेगा, लेकिन इस जुमले को आप दिल की तख्ती पर लिख कर के ले जाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाइयों, अब मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो अब दुआ की ज़रूरत है। क्या कहा? अब मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब दुआ की ज़रूरत है, अब मेरे लिए दुआ कर देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने फ़र्जंद को बुलाते हैं, अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ज़मीन पर लिटा देना। कौन कह रहा है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी पैगम्बर हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है जो नबी होने का दावा करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, वो मलऊन है, वो मरदूद है, वो नाअक़ल है, वो इस्लाम से दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, दीन से कोई उसका रिश्ता नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाना होता, अल्लाह पाक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी बनाकर भेजता। वो इस लायक थे, वो इस काबिल थे कि अल्लाह पाक मेरे बाद हज़रत उमर को नबी बनाकर भेजता। वो उमर शहादत जिनकी हुई है, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत होने के बाद, परचम सीने मुबारका पर लगने के बाद घर में चारपाई पर लेटे हुए हैं, अपने बेटे को बुलाते हैं। बेटे की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इस जगह ने मुहतरम, बेटा जैसे ही आता है, बेटे से हज़रत उमर कहते हैं, बेटा, मुझे चारपाई पर से उठा करके मुझे ज़मीन पर लिटा देना। कहाँ लिटा देना? मुझे ज़मीन पर लिटा देना। बल्कि ज़मीन पर लिटाने के बाद आगे हज़रत उमर फरमाते हैं, बेटा, मुझे आउंधे मुँह लिटा देना। कैसा लिटा देना? आउंधे मुँह लिटा देना। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो बेटे थे कहने लगे, अब्बू जान, आपको तकलीफ़ होगी, आपके सीने मुबारका पर चोट लगी हुई है, खून ज़्यादा निकलेगा, आपको तकलीफ़ होगी, आपको दर्द हो रहा है। अब्बा, मैं आपको लिटाना नहीं चाहता। अब्बा, आपको तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। अब्बा, अगर आपको तकलीफ़ होती है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। अब्बा, आपकी इस तकलीफ़ को देखकर मुझे रहा नहीं जा रहा है। अल्लाह, आज मेरे बाप का साया उठ चुका है। अब्बा, आज से मेरे सर के ऊपर से आपका साया उठ रहा है। अब्बा जान, मैं आपको कैसे लिटाऊं? बुजुर्गान मोहतरम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, आसमान में मेरे दो वज़ीर हैं, एक जिब्राइल है, एक मीकाइल है। ज़मीन में मेरे दो वज़ीर हैं, एक अबू बकर है, दूसरा उमर है। वो उमर की शहादत हो रही है, एक मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ है, नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिद नबवी में खड़े हुए, तीर लग जाती है, खून के फव्वारे निकल जाते हैं। अभी 2 रकात मुकम्मल नहीं हुई है, 1 रकात मुकम्मल करके नमाज पढ़ाते हैं, 2 रकात भी मुकम्मल नहीं हुई है। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनके बेटे कहते हैं, अब्बू जान, मैं आपको कैसे लिटाऊं, आपको कैसे करवट बदलाऊं? बुजुर्गान मुहतरम, किताबों के अंदर हज़रात उलमा ने लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करवट बदलने की भी ताकत नहीं रही।
करवट बदलने की भी हिम्मत नहीं हुई। चुनांचे उनके बेटे ने उनको करवट बदलाया। करवट बदलने के बाद फौरन सजदे में पड़कर अपनी पेशानी को रगड़ने लगे। पेशानी रगड़ते हुए हज़रत उमर क्या कह रहे हैं? सजदे में पड़कर तौबा कर रहे हैं, गुजरी हुई जिंदगी पर इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। कौन उमर है मेरे भाइयों जिनकी जिंदगी में कभी उन्होंने चुमटी को तक तकलीफ को नहीं दिया। आज वो हज़रत उमर जब उनकी शहादत हो रही थी, एक मुहर्रमुल हराम को दुनिया से जाने का वक्त है, दुनिया से जुदा होने का वक्त है, सजदे में पड़े होकर पेशानी लगड़ते हुए वो क्या कर रहे हैं? तौबा कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं और अल्लाह पाक से मग़फ़िरत मांग रहे हैं। बुज़ुर्गान मोहतरम, इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े सहाबी रसूल का क्या किरदार था। दुनिया से जाते हुए अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर तौबा कर रहे हैं, गुजरी हुई ज़िंदगी पर इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। लेकिन आज मुसलमान बुराइयों में फंसे हुए हैं, आज मुसलमान बिदात वाले कामों में फंसे हुए हैं। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, भी इन लोगों का मातम क्यों नहीं बनाते? सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन का मातम क्यों मनाते हैं? नहीं मेरे भाइयों, इसका दूर दूर तक ना कुरान से कोई ताल्लुक़ है, ना हदीस से कोई ताल्लुक़ है, ना किसी सहाबी से इसका ताल्लुक़ है, ना कोई अल्लाह वालों ने हमको करने का हुक्म दिया है, ना इमाम आज़म अबू हनीफा ने कोई जलसे और जुलूस किए हैं, ना कोई जलसे करके अवाम को पैगाम दिए। नहीं मेरे भाइयों, इन कामों से मैं भी दूर रहना है, आप भी दूर रहना है।